I feel honored for being invited to address the students, especially the freshers, of such a reputed institution as Aligarh Muslim University, with a very cherished history, a very, uh, I must say, a very distinguished history and pedigree. Sir Syed Ahmad Khan, we all know. So this institute is not a normal institute in my vision. Always when I think about institutions like Aligarh Muslim University, it is not simple a college or a university where students study. There's a living tradition, how academics with culture evolved in our country in a century, you can say. So that is a living history you are living on. So congratulations, you fresher, for joining such a prestigious university. And I have browsed through your curriculum of BA Honors, and I must acknowledge that the syllabus is very comprehensive. It is much more than what Delhi University teaches in 3 years BA Honors program. Many of your topic I could not um, touch upon, or I could not cover, because I was basically taking UGC's CBCS, which Delhi University and other central universities follow. And but many topics I have seen, like international law and many more, which were unique to you, even Indian history, this independence movement and all you are studying, and many more things in comparison to what CBCS syllabus are there. So that was about your institution, and once again be and feel proud to be part of such great institution. What I would like to touch upon in today's this lecture of maybe 40 minutes, politics we will discuss a bit. Of course, it's not in a comprehensive way, but because you are starting to study politics, and many of your senior students who will be completing study politics. So let us again revisit. It is never enough. Okay, better है कि मैं जिस तरह से मैं बोलता हूँ वो उसमें हम लोग बात करें. English may be some barrier. It is never enough. ये कभी काफी नहीं है कि आप politics के बारे में फिर से सोचें. मैं ये कर रहा हूँ. It is never enough to revisit the meaning of politics. So we will revisit. And this, what I am trying to say is this negative and positive politics. That I will try to discuss what I mean by that. And then we'll discuss the perpetual question जो आपके दिमाग में आता है ना, हर कोई जो सब्जेक्ट लेता है उसके दिमाग में एक बात आता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ के मेरा होगा क्या, उस पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे. एंड देन थोड़ी सी मैं आपको ये भी इंसाइट देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ आप में से अब वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस में प्रवेश करेंगे, और जो फ्रेशर्स हैं वो सोचते होंगे कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिटिक्स समझ जाएंगे. तो जो दुनिया जो दो अलग है ना, दो दीवार है, एक पॉलिटिक्स के प्रैक्टिस की दुनिया और एक पॉलिटिकल साइंस जो थ्योरी की दुनिया. इन दोनों दुनिया में क्या फर्क है उसको समझेंगे. वो आपको हेल्प करेगा पूरे आपके पढ़ाई के दौरान और आगे भी. एंड देन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है. और फाइनली मैं इस पे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बात करने में कि कैसे आप जॉब रेडी हो सकते हैं. ये भी वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक रहा है. उस पे ऐसे मैंने वीडियो अभी नहीं बनाया है, बट फ्यूचर में बहुत सारे वीडियो में इस पे सोच रहा हूँ फ्रेम करने का. सो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आप अपने को जॉब रेडी कैसे बनाएं. सो these are the things we'll discuss. Okay, let's move ahead. बिफोर, अच्छा इसमें कहीं भी यदि आपको कोई परेशानी ये हो कि नहीं दिख रहा है या कोई आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज प्रॉम्प्ट कीजिए, बिकॉज इस मीडियम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इट्स जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. जैसे मैं अपने वीडियो में नरेट करता हूँ, तो आप जब तक बोलेंगे नहीं, जो मॉडरेटर हैं वो प्लीज आप क्यू हमें दीजिएगा. ओके, और क्वेश्चन आंसर जो है इसके बाद जब एक बार सेशन खत्म हो जाए तो आप नोट कर लीजिए, एंड देन वी विल हैव सम क्वेश्चन आंसर्स.
Before we discuss politics, let us discuss these three words. एक small p से देखिए start हो रही है, capital P से और political. क्या डिफरेंस है? ये एक लेक्सिकल डिफरेंस है. लेक्सिकल जब हम बोलते हैं तो वोकेबलरी से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, ये कोई ऐसा रूल नहीं है, बट एकेडमिक्स में इस टाइप से बनाया जाता है हर डिसिप्लिन में. स्मॉल से जब हम पॉलिटिक्स लिखते हैं तो ये वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस है, मींस एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स. जब हम कैपिटल से लिखते हैं तो ये एकेडमिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है जो आप कर रहे हैं, और ये आप नहीं कर रहे हैं. और जब हम पॉलिटिकल बोलते हैं तो ये पॉलिटिक्स का एडजेक्टिव हो जाता है. इट मींस फिनोमेना, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. तो ये एडजेक्टिव है. तो द पॉलिटिकल भी कह सकते हैं, तो वो नाउन हो जाएगा. पॉलिटिकल रहने से ये जो है एडजेक्टिव होगा. एंड पॉलिटिकल साइंस जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इट इज बेसिकली स्टडीइंग, ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग पॉलिटिकल फिनोमेना एंड प्रोसेसेस टू बिल्ड टेस्टेबल थ्योरी एंड हाइपोथेसिस. तो थ्योरी एंड हाइपोथेसिस जब आप बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिनोमेना को स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस हो जाता है. So now let us discuss what is politics. यदि हम ऑक्सफोर्ड के डेफिनेशन से चले, ऑक्सफोर्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थिंकर है. तो इन्होंने जो कहा है, क्यों मैंने इसको सबसे पहले लिया है, बिफोर आई एम नॉट स्टार्टिंग द डिस्कशन व्हाट इज पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स है क्या, इसका सबसे जो जनरल जो डेफिनेशन है वो ऑक्सफोर्ड ने दिया. उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स इज अबाउट अटेंडिंग टू द जनरल arrangements of a set of people whom chance or choice have brought together. ये बेसिकली क्या कहता है, ये पहली बार यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप फ्रेशर है तो आपको लगेगा कि कुछ कह ही नहीं रहा है, अटेंडिंग टू द जनरल अरेंजमेंट. लेकिन जितना डीपर आप सोचेंगे, जैसे मैं अभी 3 साल से तो मैं एक्टिवली जो है पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस बिफोर माय स्टडी, बट मैं सोचता हूँ कि ये बहुत एप्ट डेफिनेशन है. ये क्या कहता है इसको समझिए. देन वी विल डिस्कस द अदर डेफिनेशंस. बेसिकली देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो जब तक एक आइलैंड पे अकेला है, कोई नहीं है, तब तक कोई पॉलिटिक्स नहीं है. देयर इज नो पॉलिटिक्स. आप अकेले हैं तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है. लेकिन द मोमेंट उस आइलैंड पे, क्रूसो के आइलैंड पे कोई दूसरा व्यक्ति चला जाए, एक भी व्यक्ति, तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा. कैसे शुरू हो जाएगा? अब आइलैंड में जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने मान लिया वहां पे पेड़ हैं, जो वहां पे मिट्टी है, वाटर है, वहां पे शेल्स हैं, वहां पे जीव जंतु हैं, उन सब पे हो जाएगा कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है. तुरंत जो है वो बंटवारे की बात आएगी कि ये पोर्शन में तुम चले जाओ, नहीं नहीं वो पोर्शन तो अच्छा नहीं है, वहां है. 2 आदमी में भी कंफ्लिक्ट हो सकता है और उसको बैठ के रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी. ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप सोचिए कुछ आइलैंड पे हजारों लोग आ जाएं और तब जबकि सबके लिए वहां बराबर का रिसोर्सेज नहीं हो, कि जो मान लीजिए पाम के ट्रीज हैं वो नहीं है, या अदर जो फ्रूट एंड फ्लावर्स के ट्रीज हैं, या नेचुरल जो बेरीज हैं अदर्स वो इनफ नहीं है, स्कार्सिटी हो जाए, तब समझिए कि क्या होगी. और कैसे जो है पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो है, जनरल अरेंजमेंट, जब आदमी जैसे ही एक से अधिक आदमी होता है तो लाइफ जो है वो इंडिविजुअल नहीं रह जाता है. आपको रिसोर्स की स्कार्सिटी है, दुनिया में यही है, तो उस स्कार्सिटी में तुरंत हो जाता है कि कैसे बंटवारा होगा, क्या रूल होगा, और फिर आपस में रहने के लिए बहुत सारे वैल्यूज भी तय करने पड़ते हैं कि किसको बोलते हैं अच्छा बिहेवियर, किसको बोलते हैं खराब बिहेवियर, कैसा हमें बात बोलनी चाहिए, कैसी बात नहीं बोलनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए. ये जो नॉर्म, वैल्यू, इथिक्स, मोरालिटी, इंटरेक्शन में जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, ये सब भी आ जाते हैं वैल्यूज. और यही जो है जनरल अरेंजमेंट, अटेंडिंग टू द जनरल अरेंजमेंट ऑफ अ सेट ऑफ पीपल, जिसको चांस और चॉइस से जो है हम एक साथ हो जाते हैं. जैसे अभी आप एक चांस है, चॉइस है कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एक ग्रुप हैं, आप एक क्लास हैं, और उसके बीच में जो इंटरेक्शंस होता है वो पॉलिटिकल हो जाता है. वहां पे भी आप देखेंगे सारे वैल्यूज हैं. आपको किस तरह से सीनियर से बात करनी है, आपको अपने साथियों से कैसे बात करनी है, जूनियर से कैसे बात करनी है, टीचर से कैसे बात करनी है, लाइब्रेरी में कैसे बिहेव करना, ऑल नॉर्म, इथिक, वैल्यू सभी वो आपको गाइड किया जाता है. आपको कोई अथॉरिटेटिव वे में कहता है कि ऐसा करना है. पॉलिटिक्स.
और बहुत कुछ जो हम लोग देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट other definitions of politics. ऑक्सफोर्ड से बाहर निकल कर हम लोग देखें तो मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ. ऑफ कोर्स ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको बुक में है कि निगेटिव मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, ये मैं सोचता हूँ. मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के पॉजिटिव मीनिंग भी हैं और निगेटिव मीनिंग भी. पहले हम लोग देखें कि निगेटिव मीनिंग पॉलिटिक्स के क्या दिए गए हैं. जो डिफरेंट थ्योरिस्ट या पॉलिटिकल थिंकर है उन्होंने जो पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है निगेटिव वे में. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि पॉलिटिक्स इज पावर. पॉलिटिक्स पावर है. ये पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव है. बिकॉज पावर इटसेल्फ, पावर का जो डेफिनेशन है वो कई है, वो अलग बात है. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉबर्ट जहाल ने दिया था कि ए को है पावर बी के ऊपर यदि ए बी को बिना उसके इच्छा के भी कोई काम करने को मजबूर कर सकता है. डोमिनेंस. आप किसी से कोई काम बगैर उसके विल के यदि आप करवा सकते हो तो आपको उस आदमी के ऊपर या उस एंटिटी के ऊपर पावर है. ये जो पावर का जो फिनोमेना है ये यूबिक्विटस फिनोमेना मींस या कहिए ये सर्वमान्य फिनोमेना है, मोस्ट एक्सेप्टेड फिनोमेना है. वैसे हाना आर्डेंट ने कहा कि पावर जो है वो मिल करके को क्रिएशन करने को पावर बोलते हैं, बट ये माइनॉरिटी व्यू है. मेजॉरिटी व्यू वही है जो रॉबर्ट हाल ने कहा. तो पॉलिटिक्स जब हम कहते हैं पावर है तो उसमें एक और आप ऐड कर लीजिए इंटरेस्ट. हमारा इंटरेस्ट, किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट, नेशन का इंटरेस्ट और उसकी ताकत, पावर, कितना वो दूसरे पर इन्फ्लुएंस है. तो कई जो है रियलिस्ट व्यू में भी आप देखेंगे, रियलिज्म जो पॉलिटिक्स का है मैकियावेली से लेके मॉर्गनथाउ तक जो रियलिज्म है जो कि वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स जो प्रैक्टिस होती है उसके बहुत करीब है, जो पॉलिटिक्स दिखता है. तो उसमें ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स जो है वो इंटरप्ले है इंटरेस्ट और पावर का. इंटरेस्ट क्या है? जैसे अभी आपका इंटरेस्ट है इस सर से हम लेक्चर सुने और हमें कुछ फायदा हो, आपका एक बहुत लिमिटेड इंटरेस्ट है और हम लोग यहाँ पे. इसी तरह से किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कि हमें लाइफ में सक्सेस मिले, हमें अधिक से अधिक रिसोर्स मिले, पावर अधिक से अधिक मिले, वो भी एक इंटरेस्ट है. तो सबका अलग इंटरेस्ट हो सकता है. किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा नाम कमाएं, किसी का हो सकता है कि हम बहुत पैसे कमाएं, किसी की इंटरेस्ट जो है और हो सकती है. वैरिंग इंटरेस्ट होती है. हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एस्पेक्ट. और इन इंटरेस्ट के लिए जो द्वंद्व होता है, जो कन्फ्लिक्ट होता है, वो पॉलिटिक्स में बदल जाती है. और वहां पे पावर जो है वो आपकी करेंसी बन जाती है. जिस तरह आपके पास यदि मनी है इकोनॉमी में तो आप अपनी यूटिलिटी को फुलफिल कर सकते हो, उसी तरह यहाँ पे यदि आपके पास पावर है तो आप अपने इंटरेस्ट या प्रेफरेंस उसको प्रिवेल कर सकते हो. तो ये पावर और इंटरेस्ट का गेम बन जाता है. यदि हम रियलिस्ट विजन में देखें तो पॉलिटिक्स के दो प्लैकार्ड हैं. कोई प्लैकार्ड लेके दिखा रहा है इंटरेस्ट पावर, इंटरेस्ट पावर, तो वो पॉलिटिक्स है. इसलिए कई लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ पावर. पार्टी पॉलिटिक्स. पार्टी क्या है? एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि पावर एक्वायर करते हैं और फिर शासन करते हैं. और पार्टी पॉलिटिक्स, ओवल कॉन्फ्लिक्ट. पॉलिटिक्स इज व्हाटएवर कंसर्न स्टेट. ये भी एक नेगेटिव व्यू है. देखो स्टेट अपने आप में क्या है, अभी आप कई लोग पढ़ोगे स्टेट का जो सबसे वेबर ने जो कहा था और वो बहुत सही भी है कि इट इज ए स्टेट एक ऐसा ऑथोरिटी है जिसको मोनोपोली ऑफ यूज ऑफ फोर्स, कोएर्सन, वायलेंस है. उसको मोनोपोली है. आप देखो ना स्टेट क्या है, किसी के पास में मोनोपोली ऑफ वायलेंस नहीं है स्टेट को छोड़ करके. एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है. तो महात्मा गांधी ने भी कहा पॉलिटिक्स इज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज. ये डेविड ईस्टन की बहुत फेमस डेफिनेशन है. ये भी निगेटिव है. इसका मायने क्या होता है? इसके बहुत मायने हैं लेकिन आप इसको एक सिंपल वे में समझो. ऑथोरिटेटिव एलोकेशन एंड वैल्यूज क्या है? जो पॉलिटिकल वैल्यूज है, नॉर्म, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आइडियोलॉजी सही है. कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके अपने पॉलिटिकल वैल्यूज होते हैं. वो लेफ्ट लीनिंग हो सकती है, राइट लीनिंग हो सकती है, उसके इकोनॉमिक वैल्यूज अलग होंगे, सोशियो कल्चरल वैल्यू. और जब वो आती है तो अपनी वैल्यू ऑथोरिटेटिवली एलोकेट करती है समाज में. अब यही सही है. वो एजुकेशन को भी चेंज करने की कोशिश करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने की कोशिश. सारे जो समाज होते हैं उसको अपने वैल्यू को ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज. वन ऑफ द पॉलिटिक्स इज
पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप, पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप, वैसा रिलेशनशिप जो पावर के बेसिस पे है, जिसमें कोई एक लेस पावरफुल पावरफुल है, कोई ज्यादा पावरफुल है, वेयर बाय वन ग्रुप ऑफ कोर्स जिसके पास ज्यादा पावर है, ऑफ पर्सन इज कंट्रोल्ड बाय अनदर, सॉरी उल्टा, जो ग्रुप के पास लेस पावर है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय अनदर ग्रुप। ये केट मिलेट ने कहा था, जो कि रैडिकल फेमिनिस्ट है, उनका देखिए व्यू क्या है, बिकॉज दे ऑलवेज फील, फेमिनिस्ट फील कि जो मैन वुमेन का रिलेशन है वो पावर स्ट्रक्चर्ड है, जो पैट्रियार्की है पावर स्ट्रक्चर्ड है, जो सोशल रिलेशन है मेल फीमेल या इवन जो स्टेट है वो एक मास्कुलिन वो इंटीटी के रूप में ट्रीट किया है, पॉलिटिक्स इटसेल्फ जो है मास्कुलिन फिनोमेना के रूप में इसको स्टडी किया है। तो सोसाइटी में जो पावर स्ट्रक्चर रिलेशन है वो पॉलिटिक्स है। आप इस सब को देखें तो ये पॉलिटिक्स इज पावर के डिफरेंट एक तरह से मीनिंग या डेफिनेशन है पॉलिटिक्स के। दूसरा नेगेटिव जो मैंने देखा है वो ये पॉलिटिक्स एज कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिक्स जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, विवाद पैदा करता है, द्वंद्व पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वैरिंग इंटरेस्ट है। आपको मैंने बताया कि रॉबिन्सन क्रूसो जब तक आइलैंड अकेला है, कोई इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक आदमी है, उसको जहां सोना है, सारे रिसोर्सेज उसी के हैं, लेकिन दूसरा आदमी जैसे ही आएगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और समाज में जब इतने लोग होते हैं, सबके इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस, वैल्यूज अलग अलग हैं, तो कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है। और फिर स्ट्रगल फॉर पावर एंड रिसोर्स होता है, जो हॉब्स ने किस टाइप का बोला, आप इसको समझिए कैसे मिलता है, यही पॉलिटिक्स है। रिसोर्सेज कैसे बंटवारा होता है, जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, कौन हैव्स होते हैं, कौन हैव नॉट होते हैं। जिनके पास पावर होता है वो रिसोर्स कॉर्नर कर लेते हैं, जिनके पास नहीं होता है वो डेस्टिट्यूट पुअर रह जाते हैं। तो हैरोल्ड लासवेल का दिस ऑल जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, ऑल नेगेटिव मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स है। अब देखिए पॉजिटिव मीनिंग ऑफ एरिस्टोटल, जो कि पॉलिटिकल साइंस के आपके ये फादर हैं, उनका क्या विचार था पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स इज एन इथिकल एक्टिविटी एम टू क्रिएट ए जस्ट सोसाइटी एंड इंश्योरिंग गुड लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। अब देखिए कितना डिफरेंट है, ये एक एथिकल मोरल एक्टिविटी है। गांधी जी को याद कीजिए, वो भी यही कहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया कि मैं एक रिलीजियस आदमी हूँ, मेरे रिलीजन ने मुझे ठेल के भेजा है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स एक मोरल इथिकल एक्टिविटी है समाज का उत्थान करने के। सेम एरिस्टोटल कहते हैं कि इसमें ह्यूमन जो है, इंडिविजुअल जो है, अपना फुलफिल्ड लाइफ, जिसको फ्लरिशमेंट वो बोलते हैं, वो तभी अचीव कर सकता है जब वो पॉलिटिक्स में आए। मतलब ह्यूमन जो है वो अकेले रह के एक फुलफिल लाइफ लीड ही नहीं कर सकता है, वो लोगों के साथ जब आएगा, मिल करके जब वो समाज को बनाएगा गुड लाइफ, तो उसी के थ्रू अपना वो जो है उसका फ्लरिशमेंट होगा, उसके पर्सनैलिटी या कैरेक्टर का, उसकी लाइफ जो है फुलफिल्ड होगी। या पॉलिटिक्स एज कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन कंसर्ट मीन्स मिल करके, जैसे आप ऑर्केस्ट्रा में कंसर्ट में देखते हैं, एक्टिंग इन कंसर्ट, को क्रिएशन, ये हाना आर्डेंट का कहना है, जो कि एक तरह से हाई लेवल पे यूनाइटेड नेशन में लोग बातचीत करते हैं, बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत करके रिजॉल्व करते हैं, वॉर को खत्म करते हैं, पीस बनाते हैं, वो पॉलिटिक्स है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, ये ऑटो वॉन बिस्मार्क ने कहा था। ये प्राइम मिनिस्टर थे प्रूसिया के, आप सभी को पता है बिस्मार्क के बारे में, जिन्होंने और बहुत सारी बातें कही जो कि बहुत निगेटिव है, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो बहुत पॉजिटिव है पॉलिटिक्स के बारे में।
इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। इसको पार्टी पॉलिटिक्स में लोग यूज करते हैं कि भाई पॉलिटिक्स तो आर्ट ऑफ द पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, वो उसको अपॉर्चुनिस्टिक वे में यूज करते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, मतलब कुछ भी हो सकता है, यदि पॉलिटिक्स सही हो तो दुनिया बदल सकती है। तो ये बिस्मार्क है। Politics is the activity by which differing interests within society are conciliated, मतलब reconcile किए जाते हैं by giving them a share of power। मतलब जो different groups हैं उसको यदि आप power में share देते हैं, उसके interest का ध्यान रखते हैं, तो उससे reconciliation होता है समाज में, और ये politics है, ये बर्नार्ड क्रिक का कहना है, जो कि इससे मिलता जुलता है। So these are the positive meaning of politics। अब आप देखिए एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, या जो पढ़ के निकल रहे हैं या जो इंटर कर रहे हैं, आप देखेंगे वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में, नॉट आई थ्योरी की बात कर रही, तो अभी थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी आपको पॉजिटिव पॉलिटिक्स दिखेगा, निगेटिव पॉलिटिक्स। जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है वो इन सबको करता हुआ दिखेगा, आपको लगेगा कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहा है, कहीं आपको लगेगा मिल के, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पैंडेमिक लीजिए, उसमें किस तरह से साइंटिस्ट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, WHO, इंटरनेशनल, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल गवर्नमेंट्स, सब ने मिलकर कैसे 12 महीने में वैक्सीन बना दिया। ये है एक्टिंग इन कंसर्न। लेकिन उसका दूसरा यदि आप देखेंगे कि कैसे जो है पार्टियों के बीच में तू मैं होती है पैंडेमिक को लेके, टूल किट वर्सेस अदर किट्स, एंड कोई बदनाम कर रहा है तो कोई सरकार सामने आती है, एफआईआर होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिक्स एज कॉन्फ्लिक्ट। पैंडेमिक में आप हर रूप देख सकते हैं। आप पॉलिटिक्स को इस पैंडेमिक के जो अनफोल्ड हुई है उसके थ्रू पूरे पॉलिटिक्स को आप समझ सकते हैं। ये सारे डेफिनेशन उस पर एक एक करके आप लागू कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि एज ए स्टूडेंट मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और जो फैक्ट है कि पॉलिटिक्स और केवल पॉलिटिक्स दुनिया को बदल सकती है और बदलती है। केवल मैं कह रहा हूं, कोई और जो सोशल फिनोमेना है उसमें ये ताकत नहीं है, केवल पॉलिटिक्स में। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन जो दुनिया में होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, साइंटिफिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, कम्युनिकेशन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, फैमिली, फ्रेंडशिप, सारे सोशल इंटरेक्शन प्ले आउट होते हैं इन द ओवर आर्किंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स ही उसको एक ओवर आर्किंग कॉन्टेक्स्ट देता है, उसी के साए में सभी ये जो फिनोमेना है वो प्ले आउट होते हैं। आपको शायद पता है या नहीं कि इकोनॉमिक्स जो है वो पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नाम का कुछ नहीं था, उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। आप जितने भी देखेंगे पुराने लिटरेचर, एडम स्मिथ ने जो लिखा, रिकार्डो ने जो लिखा, जेएस मिल ने जो लिखा, पॉलिटिक्स पे इन्होंने इन सब ने लिखा, मार्क्स ने लिखा, ये सब पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाते हैं। आपको ये भी शायद पता है या नहीं कि जो एरिस्टोटल, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस का पितामह कहते हैं या ग्रैंडफादर बोलते हैं, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो ऑप्टिकल साइंटिस्ट थे, फिजिक्स में उन्होंने बहुत काम किया था, बायोलॉजी में उनका बहुत सारा काम है। हॉब्स जो है वो मैकेनिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे। रेने देकार्त जो है, जो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर माने जाते हैं इनलाइटनमेंट लाने के पहले, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। न्यूटन को बहुत लोग जो है एक बहुत बड़ा फिलोसफर मानते हैं। तो ये जो जितने भी आप फिनोमेना आप देखेंगे, आप हर्बर्ट साइमन का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होकर उन्होंने कहा कि मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ और कुछ नहीं। लेकिन आपको पता है जिन्होंने हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग थ्योरी दिया, रैशनल चॉइस थ्योरी एंड अदर्स, उनको नोबेल प्राइज 1974 में इकोनॉमिक्स के लिए मिला। और वो जब बूढ़े हो गए तो ही डाइड एज ए एक्सपर्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का रेंज क्या है। आप इसका यहाँ यदि उससे पहले आप ये समझिए कि यदि आपको पॉलिटिकल इंसाइट डेवलप हो जाए, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉलिटिक्स क्या है, तो अभी आप जैसे पैंडेमिक को आप फोल्ड आउट होते देख रहे हैं, अनफोल्ड होते देख रहे हैं, तो आप किसी भी इवेंट को 360 डिग्री व्यू आप उस चीजों का आपको दिखेगा। आपको वो चीज दिखेगी जो दूसरों को नहीं दिख रहा है, जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है उसको नहीं दिखेगा।
जो मैनेजमेंट पढ़ रहा है उसको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको दिखेगा यदि आपने वो पॉलिटिकल इनसाइट डेवलप किए। और जरा सोचिए कि केवल मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे कितनी एग्जांपल हैं। अभी की जो दुनिया है, हम कहते हैं हम नियो लिबरल वर्ल्ड में रह रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। लॉक ने इस एक थ्योरी से इसको शुरुआत किया, लिबरलिज्म को। फासिज्म ने किस तरह से दुनिया को बदल दिया इंटर वॉर पीरियड में, अभी तक उससे हम मुक्त नहीं हो पाए। एक दो व्यक्ति, हिटलर, मुसोलिनी या कुछ लोगों की आइडियोलॉजी। और सोशलिज्म जो मार्क्स ने जो चिंगारी दी, और कैसे उसको लेनिन और अदर ने जो है, माओ जेदांग ने कैसे वो वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस में लेके गए और पूरी दुनिया को उन्होंने बदल डाला, जो आज भी बदली हुई है। कैसे इन्होंने इन सब ने वर्ल्ड को बदला, केवल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही दुनिया बदला। आप इंडिया में भी देखिए कैसे गांधी जी ने इंडिया को बदला पॉलिटिक्स के थ्रू, नॉट रिलीजन के थ्रू। कैसे अंबेडकर जी ने बदला पॉलिटिक्स के थ्रू। और आज भी यदि कहती है बीजेपी, मान लीजिए सत्ता चला रही है, तो वो यदि इंडिया को बदलना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स के थ्रू। यदि कांग्रेस ने कुछ करने की कोशिश की तो पॉलिटिक्स के थ्रू। तो पार्टी भी जो है वो पॉलिटिक्स के थ्रू ही, तो केवल पॉलिटिक्स से ही दुनिया बदल सकती है। और मैं आपसे ये, आई एम एक्सहॉर्टिंग यू कि आप ऐसा कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इन ए लिटिल वे। ये नहीं कि आप गांधी जी बन जाए, अम्बेडकर बन जाए। आप बहुत छोटे से वे में, अपने क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंडशिप में, अपने ग्रुप में, आप यू कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय हाईलाइटिंग पॉजिटिव पॉलिटिक्स एंड अंडरमाइनिंग निगेटिव पॉलिटिक्स। आप जहां भी फील करें कि निगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है, उसको आप अंडरमाइन करें, उसको आप थोड़ा नीचे ले जाएं, आप उसको तवज्जो ना दें, आप उसको वैल्यू ना दें। और जहां पे आपको दिखती है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, वहां इन्वॉल्व हो। और जहां नहीं दिखती है वहां पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, मतलब कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करें, मिल के को क्रिएट करें, मिल के रिसोर्सेज पावर शेयर करें। मतलब जनरल जो है इथिकल वे में लोगों के लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं, जो आपसे जुड़ते हैं उस वे में पॉलिटिक्स करें। चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, वहां पे भी आप देखेंगे कितनी पॉलिटिक्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉलिटिक्स। वहां पे भी आप पॉजिटिविटी ला सकते हैं। यदि आप समझते हैं कि निगेटिव पॉलिटिक्स क्या है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स क्या है, निगेटिव पॉलिटिक्स से बचें, पॉजिटिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो। और ये ना कहें कि तुम पॉलिटिक्स करते हो। यस, वी शुड डू पॉलिटिक्स, बट ओनली पॉजिटिव पॉलिटिक्स। ओके, नाउ हम एक दूसरे थीम पे आते हैं कि जो एक हमेशा से एक परपेचुअल क्वेश्चन जो है रहता है, इटर्नल क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ के होगा क्या, क्या मिलेगा मुझे, कौन सा जॉब मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है, ये आपके दिमाग में भी आता होगा। फ्रेशर्स यदि हैं तो आपके भी, और यदि फाइनल ईयर में है तब भी आपके। उस पर चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका दो वैल्यू होता है। एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्या मायने हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंटल व्यू का मायने ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस एक मींस होता है आपके लाइफ में कुछ सक्सेस पाने का, मतलब जॉब पाने का, पैसा पाने का, इज्जत पाने का। वो एक माध्यम बनता है, मींस बनता है, इंस्ट्रूमेंट बनता है। ये एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। मतलब किसी भी चीज का इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होने का मतलब है कि अपने आप में उस चीज का कोई मीनिंग नहीं है, बस उसके ऊपर पांव रख के आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। जैसे कि मनी का इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, अपने आप में मनी का क्या वैल्यू, आप पैसे को थोड़ी खा सकते हैं, केवल 100% उसका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि अपने आप में किसी चीज की यदि वैल्यू है, कोई उसका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की अभी बात हम नहीं कर रहे, खुद अपने आप में वो एंड है, उसके ऊपर पांव रख के आप आगे नहीं बढ़ते हैं, आप उसको बस गले लगाते हैं और आपको सब कुछ मिल जाता है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू। ये दोनों ही वैल्यू जो है हर सब्जेक्ट में होता है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में ये दोनों वैल्यू क्या है। यदि हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू पहले लें तो इसमें जो है कैरियर ऑप्शंस जो है आपके पास में बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से है, लेकिन मोस्ट रिलेवेंट यदि कोई डिप्लोमेट हो सकता है तो वो हो सकता है इसमें कि
पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, जिसने मास्टर्स में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा हो, वो सबसे बेहतर डिप्लोमेट हो सकता है। वैसे तो आईटी से पढ़े इंजीनियर भी हो सकते हैं और हुए हैं, क्योंकि आप एक एग्जामिनेशन पास कर लेते हो तो आपको हो जाता है, बट दे कैन नेवर बी दैट काइंड ऑफ डिप्लोमेट जो स्ट्रक्चर्ड वे में तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आप जो है इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हैं, एनजीओज, इवन इंटरनेशनल एनजीओज के लिए आप फिट हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप कई रोल निभा सकते हैं मैनेजर्स के, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट करके, जो आपके लिए भी बिल्कुल ओपन है। सिविल सर्वेंट तो आप बन ही सकते हैं, चाहे सेंटर में बने, चाहे स्टेट में बने, चाहे सबऑर्डिनेट सर्विस में बने। एंड आप एकेडमिक्स बहुत बड़ा फील्ड है, आप उसमें जा सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये कैरियर ऑप्शंस हैं। लेकिन इन कैरियर ऑप्शन के लिए आपको अपने को जॉब रेडी बनाना होगा। ये उस टाइप का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू बहुत हाई इसलिए हो गया है क्योंकि ये डेवलपिंग इकोनॉमी रही है पिछले कुछ सालों में, 20-25 सालों में। तो यदि आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड अदर्स, तो आपको कैंपस में कंपनीज आती हैं, वो ले जाती हैं। वो क्यों ले जाती हैं? उसका कारण ये होता है कि उनको आपके पढ़ाई से कोई ज्यादा नाता नहीं है, उनको कुछ इससे नहीं है कि आप बहुत कोई आईटी के एक्सपर्ट हो गए, कुछ नहीं होता है। वो बेसिकली उनको एक पढ़ा लिखा एक ह्यूमन चाहिए होता है, जिसको कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, क्रिटिकल एनालिटिकल नॉलेज हो, लिखने पढ़ने की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, थोड़ा ज्ञान हो कि क्या है, और उसको वो ट्रेन करके अपना काम कर लेते हैं। इसके लिए उनको लगता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सबसे सुटेबल हैं, इसलिए उनको काफी जो है आसानी से जॉब मिलती है। उस टाइप की आपको पॉलिटिकल साइंस में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लेकिन इसका बेनिफिट भी है कि वो जो जॉब होती है, आप अंदाज नहीं लगा सकते हो कि उसमें कितनी दास्ता है, कितनी जकड़न है, कितनी बेड़ी है, क्योंकि वो आप उसके नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, आप एक कॉग इन द व्हील हो, आपकी कोई यूटिलिटी नहीं है, आप एक अनोनिमस कोडर टाइप के हो, आप एनोनिमस जो है सिस्टम पे काम करते हो। बट यदि आप रियल लड़ के जॉब लेते हो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के तौर पे, आप अपनी जॉब में आप इंजॉय कर सकते हो, वो एक अलग ऑटोनॉमी आपको देती है, उसकी कोई तुलना नहीं है। बट रास्ता हो सकता है कि थोड़ा सर्कुटस हो, थोड़ा कठिन हो, बट उसमें चार्म भी उतना ही है। नाउ इस पे हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट स्लाइड में। ये मैं इस पे कुछ बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपने को जॉब रेडी कर सकते हो, और शर्तियां मतलब guaranteed you can get a job if you do what I prescribe. यदि हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखें कि अपने आप में पॉलिटिकल साइंस आपको क्या देता है, अगेन ये कोई पॉलिटिकल साइंस ही केवल नहीं देता है, ये हर सब्जेक्ट देता है। इसीलिए इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पॉलिटिकल साइंस में भी वो ताकत है कि आपको वो देता है। और क्या देता है? जो मैंने पहले कहा कि केवल पॉलिटिकल साइंस और कोई सब्जेक्ट नहीं देता, आपको वो इंसाइट देता है कि आप दुनिया को 360 डिग्री जो है वो विजुअलाइज कर सको। सेकेंड, यदि आप देखोगे इसके पहले, यदि हम यहाँ के पहले, कि आप यदि पॉलिटिकल साइंस का इंसाइट डेवलप कर लेते हो, तो इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में 2 टॉपिक पे ही कन्वर्सेशन सोसाइटी में होती है ज्यादा, वेदर के अलावा। यदि आप वेदर छोड़ दो तो एक होती है पॉलिटिक्स और दूसरी होती है स्पोर्ट्स। इंडिया में क्रिकेट पे होगी तो इंग्लैंड में जो है फुटबॉल पे, और अमेरिका हो सकता है बेसबॉल पे हो, बास्केटबॉल पे, बट 2 ही टॉपिक पे चर्चा होती है। और आप यदि एक के एक्सपर्ट हो तो आप समझो कितने फेवरेबल सिचुएशन में हो, क्योंकि आप अपनी मुंह खोल सकते हो, आप बोल सकते हो, आपके बात में वजन होगी, लोग आपको सुनेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने देखा है कि कैसे आईटी से पास्ट इंजीनियर, जब कोई चर्चा होती है तो कैसे वो खामोश हो जाते हैं, कि उनको क्लूलेस होते हैं कि हम क्या बोलें इस पे, बिकॉज उन्होंने कभी इस चीज को, उनको समझने की ना तो जरूरत पड़ी और ना उन्हें समझने की कोई रास्ता उनको मिला। वो समाज को नहीं समझ पाते क्या हो रहा है, क्योंकि जो हमारे आसपास होता है वो सब में पॉलिटिक्स है, एवरीथिंग में पॉलिटिक्स है। बट मैं आपको इस पे फोकस करना चाहता हूँ कि ये आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देता है, कोरिलेटिव नॉलेज देता है। कैसे देता है मैं आपको बताऊंगा। क्रिटिकल थिंकिंग देता है, एनालिटिकल एबिलिटी देता है, लैंग्वेज और राइटिंग स्किल आपको सिखाता
और यही चीज जो है, इसी को हम बोलते हैं, ये यदि किसी भी स्टूडेंट को नॉलेज हो गया तो वो जॉब रेडी, वो जॉब रेडी है। मैं कह रहा हूँ, जॉब मिले ना मिले वो एक अलग बात है, जॉब मिलने का रास्ता अलग है, लेकिन यदि आपको कोई जॉब दे दे तो आप 100% उस पर खड़ा उतरोगे। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होता है? आप 3 साल में सैकड़ों आर्टिकल पढ़ोगे, सैकड़ों मैं बोल रहा हूँ। और यदि आपने आपने पैशन डेवलप कर लिया, जैसे मुझे पैशन है, मैं जब आर्टिकल पढ़ता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रियली बताता हूँ। तो आपको यदि खुशी मिलने लगे तो आपको लगेगा कि आपकी आई में कुछ ताकत आ गई, आपको कुछ दिख रहा है, और आप कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे। आप समझोगे, जब आप ये समझोगे राइट्स क्या होता है, जस्टिस क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, ये नॉर्मेटिव वैल्यू में जो आप सोचोगे, पावर, पॉलिटिक्स, इस पे जब मनन करोगे तो वो कॉन्सेप्ट है। और जब इन कॉन्सेप्ट को आप समझने की ताकत डेवलप कर लोगे तो लाइफ के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की ताकत, आप ये भी समझ जाओगे कि पैंडेमिक क्या है, इसके क्या रिपरकशन है, वैक्सीन क्या है, इसके क्या रिपरकशन, लाइफ में जितनी चीजें हैं उन सब के जो कॉन्सेप्ट हैं आप डेवलप कर लो। क्यों? क्योंकि सब में क्या होता है, आपको इंग्लिश या हिंदी में लिखी हुई आर्टिकल होती है, उसको पढ़ना होता है, समझना होता है। यदि आप किसी टफ आर्टिकल को, ईस्टर्न का लिखा हुआ आर्टिकल से यदि आप सिस्टम थ्योरी समझ सकते हो, यदि आप एलमंड के लिखे हुए आर्टिकल से आप सिविक कल्चर समझ सकते हो, तो आप किसी भी साइंटिस्ट के आर्टिकल को पढ़ के या जर्नल के आर्टिकल को पढ़ के वैक्सीनेशन के बारे में समझ सकते हो। एज इजी एज, मतलब तो ये ना सब्जेक्ट एग्नोस्टिक है। इससे मतलब नहीं है कि कॉन्सेप्ट आप किस तरह से लेते हो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेने का तरीका एक है जो सब्जेक्ट से अलग है, एग्नोस्टिक है। तो आप वो एबिलिटी डेवलप कर लेते हो कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ के हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। वो रिलेटिव नॉलेज क्या होता है? आपने एक जगह यदि एक नॉलेज लिया, जैसे आपने ये नॉलेज लिया कि राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, और फिर आप साइकोलॉजी से कोई उसकी जो है कंपेयर करते हो कि साइकोलॉजिकल वे में ह्यूमन के ब्रेन में जो है वो उसके बारे में क्या थॉट है, या आप इकोनॉमिक्स में आप देखते हो कि इकोनॉमिक राइट्स क्या है। जब आप इंटरडिसिप्लिनरी जो है कोरिलेट करते हो नॉलेज को, आप यहाँ के नॉलेज को वहां जोड़ते हो, वहां के नॉलेज को यहाँ जोड़ते हो, इसको कोरिलेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैं पैंडेमिक की जो सिचुएशन है उसको पॉलिटिक्स के डेफिनेशन जोड़ रहा हूँ, दिस इज कोरिलेटिव नॉलेज। आप किसी भी दो फिनोमेना को कोरिलेट कर पाते हो, तो ये जो है, और बहुत ही सही वे में कर पाते हो, उटपटांग में। ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है वर्क प्लेस पे, लाइफ में। ये आपको देता है पॉलिटिकल साइंस, यदि आप ठीक से पढ़ते हो। क्रिटिकल थिंकिंग आपको जितना पॉलिटिकल साइंस में डेवलप होता है, किसी भी विषय में नहीं होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि इसमें कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसका एक मीनिंग नहीं है। इट इज नॉट लाइक नेचुरल साइंस कि आपको कह दिया गया कि फोर्स का ये डेफिनेशन है और कोई दूसरा डेफिनेशन है, मोमेंटम का ये डेफिनेशन है। यहाँ पे पॉलिटिक्स इटसेल्फ, उसका मैंने आपको 1 दर्जन डेफिनेशन अभी बताया, पावर के 2 दर्जन डेफिनेशन आप देखोगे, आप लिबर्टी के आप देखोगे हंड्रेड्स ऑफ मीनिंग है। कोई भी इसमें सही गलत नहीं होता। किसी भी साइंटिस्ट ने यदि आपको कह दिया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थ्योरिस्ट ने, कि ये मीनिंग है लिबर्टी का, तो आपको ये मानने की जरूरत नहीं कि यही मीनिंग है। आप खुद सोच सकते हो और आप सबको क्रिटिकली देख सकते हो। आप मार्क्स के जो थ्योरी है उसको क्रिटिकली देख सकते हो, आप कह सकते हो कि नहीं, इसमें बहुत चीजें हैं जो बकवास है, वर्थलेस है। वो आप में एबिलिटी डेवलप होती है, एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती है, एनालिसिस करने की आपके पास में जो है ताकत आती है कि आप उसके अंदर में उसको कैटेगराइज कर सको, क्लासिफाई कर सको, उसको डायकोटमी देख सको, वर्सेस दिस वर्सेस दैट, दैट वर्सेस दैट, लिबर्टी वर्सेस लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी वर्सेस नेगेटिव लिबर्टी। आप कर सकते हो, जैसे आज हम लोगों ने देखा पॉजिटिव पॉलिटिक्स वर्सेस नेगेटिव पॉलिटिक्स, एनालाइज कर सकते हो। लैंग्वेज स्किल में फिर इस पे आऊंगा यहाँ पे, लेकिन आप इतना अच्छा डेवलप कर सकते हो बिकॉज आप ग्रेट ऑथर के आर्टिकल पढ़ते हो, हॉब्स के, लॉक के, उसके जो कमेंटेटर्स हैं उनकी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ आर्टिकल आप पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में, और आप बहुत अच्छा लैंग्वेज डेवलप कर सकते हो, वोकेबुलरी डेवलप कर सकते हो। राइटिंग स्किल, क्योंकि आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखनी पड़ती है, आप बहुत अच्छा राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हो। एंड इट मेक्स यू सोशली अवेयर, जो मैंने आपको पहले कहा, नॉलेजेबल एंड रैशनल इंडिविजुअल। तो एक बहुत बड़ी बात है, आपको लगता होगा ये सब क्या है, ये तो हम ऐसे ही बन ही जाएंगे। नो, सोशली अवेयर, नॉलेजेबल, रैशनल इंडिविजुअल यदि आप हो तो आपकी लाइफ बन गई। ये अलग बात है कि आप सोच रहे हो कि हमें जॉब कौन देगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यदि आप ये हो तो आपकी लाइफ बन गई। एंड इनेबल एंड इक्विप यू टू फेस द चैलेंजेस ऑफ कोर्स, ये सब यदि आप एक्वायर करते हो तो आप लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, सॉरो है, हैप्पीनेस है, टुगेदरनेस है, आइसोलेशन है, सॉलिट्यूड है, आप सबको फेस कर सकते हो।
नाउ वी गो टू अनदर थीम कि पॉलिटिकल साइंस, ये बहुत स्टूडेंट हमें यूट्यूब पे भी पूछते हैं, मैं बताता भी हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी उस पर चर्चा कर सकते हैं कि आप फ्रेशर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो लोग एमए में परसू करेंगे पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉलिटिकल साइंस को, मेरे अनुसार से ये मेरी थॉट है कि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहले तो जो मैंने आपको बोला कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए नॉर्मेटिव पॉलिटिकल वैल्यूज पे, जितनी भी मैंने अभी चर्चा किया उसका एकदम क्लियर आपके दिमाग में थॉट होना चाहिए। रेंजेस, देखिए पावर का एक मीनिंग तो आपको समझना है नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक रेंज होना चाहिए कि पावर की यहां से लेके यहां तक की मीनिंग। इसी तरह पॉलिटिक्स का इस तरह लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, वो जितने वैल्यूज हैं, मोरलिटी, इथिक्स एंड ऑल। इसी तरह पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जितने भी, लिबरलिज्म हो, फैसिज्म हो, कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ऑल क्रिटिकल थ्योरी, सबके अगेन एक आपका ब्रॉड माइंड में होना चाहिए, ये आपका एम होना चाहिए। बाकी चीजें बहुत आसान है कि जो फैक्चुअल है वो आप पढ़ लेंगे, जो हिस्टोरिकल टाइप का है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेंगे, एरिया स्टडी कर लेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीजों को समझ लेंगे। बट पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए ये दो चीज बहुत जरूरी है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल वैल्यूज एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ऑफ कोर्स थॉट भी उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक क्रिटिकल जो एंगल मैंने कहा वो आपको डेवलप करना होगा। आपको एक सोर्स से पढ़ के यदि आप सोचोगे कि मैंने ओपी गौबा की बुक पढ़ ली या निकोलस हेनरी का हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया और मेरा काम हो गया, नो, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे किसी भी कॉन्सेप्ट का एक मायने नहीं है, आपको ट्रायंगुलेट करना होगा मल्टीपल सोर्स। ट्रायंगुलेट क्या होती है? ट्रायंगुलेट मतलब कि आप मल्टीपल सोर्सेस से जो है आप लेते हो यहाँ से, और फिर देखते हो अच्छा कॉमन जो आ रहा है तो ये थॉट सही है, तो इसको ट्रायंगुलेशन मेथड बोलते हैं, जो बहुत जगह मोबाइल फोन में अदर्स में यूज होती है। तो ये मल्टीपल सोर्सेस से आपको ट्रायंगुलेट करनी चाहिए। कहाँ कहाँ से कर सकते हो वो मैं सोर्स भी आपको बताता हूँ। एक तो जो आपके यहाँ जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है, मैंने आपके यहाँ देखा, आपके यहाँ भी है, डीयू में काफी अच्छे हैं, उसकी रीडिंग लिस्ट बहुत अच्छे दिए रहते हैं, ये आपको मिल भी जाते हैं डीयू में, आपको फोटो कॉपी मिल जाती है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। और अभी तो इंटरनेट पे रीडिंग लिस्ट में से 70% फ्री में आपको अवेलेबल हो जाती है। रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक जो है उसमें से भी करीब 30% नेट पे फ्री है, जो पुराने बुक हैं, बाकी आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। देन नेट जो है वो गॉड से कम नहीं है। अच्छा, और इस पे मैं आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल मैं इसको महसूस करता हूँ कि इट्स अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मतलब हम लोगों को कई जन्म लेने के बाद भी जो है हम पॉलिटिकल साइंस या किसी भी साइंस के जो नॉलेज नेट पे है उसको हम थोड़ा भी उसका नहीं जान पाएंगे, इतना ज्यादा नेट पे नॉलेज है। आप उसका फायदा लें, उसमें से गूगल स्कॉलर जो है वो उसको जरूर आप देखिए। ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे जो है वो पेड हैं, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ फ्री मिलेंगे। जे स्टोर जो है वो पहले पेड था। जे स्टोर पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये आपको जानना चाहिए। बेसिकली वर्ल्ड में अभी क्या हुआ है पिछले 10 सालों में, जब से ये ऑनलाइन क्रांति आई है, तो पहले ऑफलाइन जर्नल होते थे। अब उन्होंने सबने ऑनलाइन जर्नल पब्लिकेशन हाउसेज या कह लीजिए वो एक इंस्टीट्यूशन बना लिया है। जैसे साइंस डायरेक्ट है, इलिसवीर है, हार्वर्ड पब्लिकेशन है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है, जे स्टोर है। जे स्टोर इंडिया में बहुत पॉपुलर है। जे स्टोर पहले जो है फ्री नहीं था, इसका आपका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। जब से पैंडेमिक हुआ है ये 100 आर्टिकल आपको एक महीने में फ्री देता है एक गूगल अकाउंट पे। और समझिए यदि आपके पास एक भी गूगल अकाउंट है तो 100 आर्टिकल आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो इसका मायने कि जे स्टोर अब हमेशा के लिए फ्री हो गया अभी पैंडेमिक। आप इसका पूरा फायदा लीजिए। गूगल में आप कोई भी टॉपिक, आपको मान लीजिए जस्टिस पे पढ़नी है, आप दीजिए जस्टिस, मीनिंग ऑफ जस्टिस, जे स्टोर आर्टिकल, और फिर देखिए आपको कितनी वंडरफुल आर्टिकल मिलती है। आप एक दो भी आर्टिकल पढ़ लेंगे आपको बहुत, क्योंकि उसमें वन ऑफ द बेस्ट जर्नल आर्टिकल मिलती है। देन स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी बिल्कुल फ्री है इंटरनेट पे, और इसमें इतने अच्छे अच्छे टॉपिक हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ, कई उस पर और भी हैं। इनफैक्ट यूट्यूब एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है इन सब के कंपैरिजन में, क्योंकि ये वीडियो है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं आपको अंबेडकर पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे मैं कई एग्जांपल दे सकता हूँ, एक दे रहा हूँ। तो मैं ये समझना चाहता था कि उनका गांधी जी के बारे में व्यू क्या है। मैंने बहुत जगह पढ़ा, और
सोचा कि स्टूडेंट को कैसे बताया जाए। लेकिन मैंने यूट्यूब पे एक बीबीसी का इंटरव्यू देखा जो कितने साल पहले आई थी, 50s में, और उसमें जो 21 मिनट का इंटरव्यू आप भी देख सकते हो, उसमें अंबेडकर जी के मरने के कुछ दिन पहले की है, उसमें उनसे बहुत कुछ पूछता है बीबीसी का कॉरेस्पॉन्डेंट, लंदन में इंटरव्यू उन्होंने दिया था, और उसमें वो इतना बेबाक बताते हैं, इतना बेबाक बताते हैं गांधी जी के बारे में, कुछ चीजें बहुत ऑफेंसिव भी है जो उन्होंने गांधी जी के बारे में कही, लेकिन उनके व्यू आप उनके ही मुंह से सुन सकते हो, ये आप कहीं नहीं, कहीं नहीं, और फिर आप समझ सकते हो। इस तरह के अनेक एग्जाम्पल हैं जो जो मैंने यूट्यूब से, इंटरव्यूज एंड अदर से आपको समझाने के लिए खुद पहले समझा और फिर उसको, यूट्यूब एक बहुत बड़ा मीडियम है। ट्राई टू रिलेट कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज टू पॉलिटिकल, तो ये सब तो सोर्स मैंने आपको बता दिया, ये सारे सोर्स। ट्राई टू रिलेट कॉन्सेप्ट थ्योरीज टू पॉलिटिकल इश्यूज। अब ये है आपको करना क्या चाहिए, जैसे अभी पैंडेमिक हो रहा है, जैसे अभी मान लीजिए इलेक्शन बंगाल का हुआ, जैसे मान लीजिए अभी अरब इसराइल की वॉर हुई, आपको ये सारे जो पॉलिटिकल इवेंट्स है, नेशनल इंटरनेशनल, उससे आपको जो जो आपने थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको रिलेट कीजिए। आप जो वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस और वर्ल्ड ऑफ जो थ्योरी है, उन दोनों में देखिए क्या नाता है, क्या जो आप आईआर में पढ़ रहे हैं क्या वो लागू हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीनी के लड़ाई में, क्या आपने जो पढ़ा है पॉलिटिक्स के बारे में वो कहीं पैंडेमिक में दिख रही है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में जो आपने डुवर्जर का लॉ पढ़ा, कुछ लोग आप में से जानते होंगे कि थर्ड पार्टी जो है वो विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट में, क्या बंगाल में आपने देखा वो गायब होते हुए, वैसा वैसा वो फिनोमिना हुआ वहां पे। तो इस तरह की चीजों को आप रिलेट कीजिए, तब आपके जो है और आपका होराइजन बढ़ेगा। एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, जो मैंने आपको बोला, किसी भी साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बात को ऑन द फेस वैल्यू मत लीजिए, किसी पॉलिटिशियन के बात को तो वैसे ही भी नहीं लेते, लेकिन पॉलिटिकल थिंकर के भी मत लीजिए, इवन मार्क्स, इवन कोई भी, मिल्स हो, चाहे प्लाटो हो, चाहे एरिस्टोटल हो, आप देखेंगे उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि इलॉजिकल है। यू शुड सी, क्योंकि हर जो व्यक्ति होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, नो बडी इज परफेक्ट, उसके थॉट में कहीं ना कहीं इनपरफेक्टनेस होती है, इरेशनैलिटी होती है, उसको आपको समझना चाहिए और अपना व्यू बनाना चाहिए। आपको खुद अपना व्यू बनाना चाहिए कि मेरे अनुसार से अधिकार का ये मायने है, राइट्स का ये मायने, मेरे अनुसार से लिबर्टी का ये मायने। आप यस यू कैन थिंक अबाउट दैट, और आप में से बहुत लोग जो है बहुत अच्छा सोच सकते हैं। इन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप में डिस्कस करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लाइफ लॉन्ग इससे फायदा हुआ है कि कोई भी इशू को ग्रुप में डिस्कस करें, आप बट जाए, आप लिबर्टी पे 2 ग्रुप बना लें, फॉर अगेंस्ट में चर्चा करें, एक पर्टिकुलर थीम पे करें, पॉलिटिक्स पे करें, सारी आइडियोलॉजी पे करें, फासिज्म इज गुड, फासिज्म इज बैड, इस पे चर्चा करें, ग्रुप में करें। सो दिस इज द वे लर्न करने का बहुत शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ। अब आइए एक और टॉपिक पे थोड़ी सी जल्दी में करते हैं, बिकॉज ये लंबा हो रहा है। देखिए, ये मैंने आपको बार बार बोला है कि वर्ल्ड ऑफ थ्योरी और वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस में एक वॉल है, दीवार है। ये क्यों समझना जरूरी है? ये समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज कई बार हम जब कोई एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स ये है, हम देखते हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स वो बहुत अलग दिखती है, क्योंकि दोनों दुनिया अलग है। और ये दुनिया अलग कैसे है? थ्योरी यदि देखिए, दुनिया जो थ्योरी की होती है ये वॉचिंग पॉलिटिक्स एट ए डिस्टेंस है। मतलब जैसे ना समुद्र के किनारे खड़े होकर आप समुद्र के लहरों को जो देख रहे होते हैं ना, वो है एकेडमिक्स। और जब आप लहरों में खुद जो है वो थपेड़े खा रहे हैं और उसमें बह रहे हैं ना, तो वो पॉलिटिक्स है। आप इसे समझिए, डूइंग पॉलिटिक्स, रेस्ट्रिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, एक्स्ट्रापोलेशन, जनरलाइजेशन। आप क्या करते हैं यहाँ पे, यदि आपको कोई फिनोमेना, वोटिंग बिहेवियर यदि आपको स्टडी करनी है, तो आप बहुत सारे वेरिएबल्स को जो है ना वो कंट्रोल कर देते हैं। लेबोरेटरी जैसे में करते हैं ना, हम बहुत सारे बहुत लिमिटेड वेरिएबल को लेके चलते हैं, देन एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। हमने थोड़ा सा कर लिया, कुछ 5 जगह के कंस्टिट्यूंसी में देख लिया और पूरे कंट्री के लिए एक्स्ट्रापोलेट कर दिया कि वोटिंग बिहेवियर ऐसे होता है, लोग ऐसे कास्ट पे करते हैं, रिलीजन पे करते हैं। इसको जनरलाइजेशन कह सकते हैं, मतलब इसको इंडक्टिव भी आप कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब आपने 5 स्टडी किया और पूरे कंट्री के लिए आपने जनरलाइज कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब आप उतरते हैं पॉलिटिक्स की दुनिया में, तो वहाँ वेरिएबल जो है अनलिमिटेड है। अभी प्रधानमंत्री के बारे में सोचिए, क्या कोई लिमिट है पैंडेमिक से लड़ने की कि क्या क्या वेरिएबल है, उनके क्या कंस्ट्रेन है, इकोनॉमिक कंस्ट्रेन से लेके पॉलिटिकल कंस्ट्रेन।
अनकंट्रोल्ड वेरिएबल है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वहां पे कुछ नहीं चलता जो आप यहाँ लैब में करते। नॉट अफेक्टेड बाय, हेलो यस, कुछ बोलना चाह रहे हो? ओके, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड ऑफ थ्योरी में नॉट अफेक्टेड बाय आउटकम। आप मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करते हैं वोटिंग बिहेवियर की, और आपको दिखता है कि लोग जो है कास्ट पे वोट करते हैं, मान लीजिए आपने फिनोमेना आपने जनरलाइज कर दिया, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका या तो आएगा लोग कास्ट पे वोट नहीं करते या करते हैं, यू आर नॉट अफेक्टेड। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप हार जाओ जीत जाओ, मेक और ब्रेक पॉलिटिशियन होता है। आप हारोगे तो सब कुछ लूट गया, हार गया, पॉलिटिक्स में बाहर हो गए, तो आउटकम यहाँ पे जो है इतना डिफिकल्ट हो जाता है, और यहाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये देखिए जो दुनिया होती है वर्ल्ड ऑफ थ्योरी की, नॉर्मेटिव होती है। नॉर्मेटिव वर्ड जो है फ्रेशर्स आप 3 साल तक सुनते रहोगे। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? नॉर्म से निकला है। नॉर्म मतलब क्या होता है? समाज में जो एक कस्टम, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, नॉर्म ऑफ बिहेवियर, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको नॉर्म कहते हैं। नॉर्म वैल्यू से निकलता है, समाज में क्या वैल्यू है। मतलब बड़ों का हम पैर छू के मान लीजिए इंडिया में प्रणाम करते हैं, ये हमारा नॉर्म है। इंग्लैंड में तो नहीं करते हैं, वहाँ हेलो मिस्टर XYZ कहते हैं। तो ये जो नॉर्म है ये आइडियलिस्टिक होता है, क्योंकि वो हर समाज का अपना वैल्यू होता है, कोई इंपेरिकल नहीं होता है। शुड बी, कैसा होना चाहिए, ऑट टू बी, आइडियलिस्टिक। लेकिन जो दुनिया होती है प्रैक्टिस की, पॉलिटिक्स की, वो तो रियलिस्टिक है, वो तो मैकियावेली की वर्ल्ड है। डीलिंग विथ व्हाट इट इज, यहाँ पे कुछ नहीं चलता कैसा होना चाहिए, जो है वो है, उसी से आपको डील करना होगा। तो यहाँ रियलिज्म हो जाता है। वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस या एरिना ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये लेबोरेटरी है वर्ल्ड ऑफ थ्योरिकल। कैसे दोनों जुड़ा हुआ है ये देखिए, उसी को देख के आप जो है अपने फिनोमेना का को टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, वही आपके लिए लेबोरेटरी है। और वर्ल्ड ऑफ थ्योरी जो है वो भी हेल्प करता है वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस को, क्योंकि वो थॉट को स्ट्रक्चर करने में मदद करता है। जो रियल पॉलिटिशियन है वो भी सोचते हैं, क्योंकि आपने देखा कैसे जो है मार्क्स के थॉट को लेके लेनिन ने एक्चुअल जो है प्रैक्टिस किया, तो वो स्ट्रक्चर करता है थॉट को, इनसाइट देता है, टूल देता है डिसीजन लेने के लिए, तो वो भी आपको हेल्प करता है। लेकिन फिर भी दोनों दुनिया बहुत अलग है। नाउ दिस इज द फाइनल स्लाइड जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ये है कि आप अपने को जॉब रेडी कैसे बना सकते हो। इसमें कई बातें ऐसी है जो आपको लगेगा कि सर क्या कह रहे हैं, ये तो हाँ करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं यस करना चाहिए। ये बातें नहीं है, ये बातें नहीं है मैं कह रहा हूं। और मैं आपको कह सकता हूं कि यस इसमें से कई बातें और शायद अधिकतर बातें मैंने की है, और मैंने देखा है अपने दोस्तों में सक्सेसफुल लोगों को ये करते हुए। क्या करना है? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मेक हेल्दी डेली रूटीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अभी फॉर्मेटिव एज में हो, अभी आप 18 साल के हो, यदि आप फ्रेशर हो तो, इवन यदि आप फाइनल ईयर में हो तो 21 ईयर के हो, 25 ईयर तक माइंड बॉडी दोनों ग्रो करता है, याद रखो। अभी आप पूरी तरह से जो है मैच्योर नहीं हुए, तो आप अपने बॉडी को बना सकते हो। जो एक्टर को अच्छी बॉडी, उस टाइप की बॉडी जैसा आप डेवलप, ऐसा नहीं कि आपको वैसा मसल बनाना है, वैसा सिक्स एप बनाना है, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन आप एक अच्छा बॉडी बना सकते हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अच्छा बॉडी बना सकते हो। और बहुत जरूरी है, लाइफ लॉन्ग आपको वही हेल्प करेगा। आप दौड़ सकते हो, आप सीढ़ी पे झटक के चढ़ सकते हो, आप कोई फिजिकल स्ट्रेस ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब प्लेस पे इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स में इंपॉर्टेंट है। लाइफ बहुत ज्यादा आपके शरीर पे प्रेशर डालता है। बी ए हेल्दी पर्सन, अ हेल्दी माइंड। एक्सरसाइज कीजिए, नहीं ये कि 18 साल के हैं तो अभी क्या लेटे हुए हैं। अच्छी रूटीन एंड गुड हैबिट, यही पीरियड होता है जब बैड हैबिट जो है, जिसको डेली हैबिट बोलते हैं, आप कैच करते हो दोस्तों में। आप स्मोकिंग शुरू करते हो, ड्रिंकिंग शुरू करते हो, प्लीज अवॉइड दैट, प्लीज अवॉइड दैट। आपको शायद पता नहीं है कि यदि आप स्मोक करते हो तो आपका जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई लोग हमारे दोस्त में से टर्म इंश्योरेंस लेने से हिचक गए हैं क्योंकि वो स्मोकर है, और कई जगह आपको हार्म होता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कई जगह आपको हार्म होता है। प्लीज डोंट डू दैट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप हेल्दी, आपके माइंड एक हेल्दी बॉडी में है, तो आपने आधा जो है वो जॉब रेडी आपने अपने को बना लिया। देन जो सेकंड ये है कि इंग्लिश, ऑफ कोर्स ये कहने में बहुत क्लिशे है कि
इंग्लिश से क्यों अभी भी, लेकिन दुनिया जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे चल रही है। हम नियो लिबरल वर्ल्ड में हैं जो डोमिनेटेड है अमेरिका से। अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, आपको बहुत सारे कंपटीशन इंग्लिश में होते हैं, तो इंग्लिश आपको जानना है। और इंग्लिश में ही कंपटीशन में इंग्लिश के वर्ड पूछे जाते हैं, हिंदी के वोकैबुलरी तो पूछे नहीं जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, और मुझे हमेशा लगता है कि ये इतना आसान है, बच्चे करते क्यों नहीं, ये मेरे मन में आता है, ये डेफिनेटली आता है कि इंग्लिश वर्ड जो है, जब आप आर्टिकल पढ़ोगे, आई एम श्योर कि जब आप एक आर्टिकल पढ़ोगे पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का, तो आपको 5 से 6 वर्ड मिलेंगे मिनिमम जो आपको नहीं आता होगा। लेकिन आलस में क्या होता है, आप उस वर्ड को देखते नहीं हो, आप उसको सोचते हो ठीक है कुछ होगा इसके मायने, अंदाज लगा के आगे बढ़ जाते हो, आप नहीं सीख पाते हो। ऐसा मत करो, हर आर्टिकल से उस वर्ड को जो आप नहीं जानते हो 10 मिनट टाइम दो। अभी तो इंटरनेट पे है, आप उसका प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हो, आप उसके कई मायने सीख सकते हो, जो कि मतलब पहले के टाइम में नहीं थी, अभी तो वो है, तो उसका फायदा लीजिए। और यदि एक वर्ड भी आपने एक दिन में सीखा, जिसको अच्छा वर्ड बोलते हैं, तो आप 1000 वर्ड 3 साल में सीख सकते हो, और इतना ही काफी होगा आपको इंडिया के किसी भी कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए। टेक माई वर्ड, चाहे आप जीमैट करना चाहो तो फॉरेन की है, चाहे आप जीआरई करना चाहो, या आप टोफेल करना चाहो जो आपको फॉरेन एडमिशन के लिए जरूरी है, या आप इंडिया में एलआईसी का एग्जाम दो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दो, आपको हर जगह वो 1000 वर्ड से ही काम हो जाएगा। डू इट। सेकेंड, डेवलप जनरल अवेयरनेस। ये केवल जरूरी नहीं है कि आप जो है पढ़े जा रहे हो पॉलिटिकल साइंस सोचोगे कि आप जॉब रेडी हो जाओ। नो, आपको सिचुएशनल अवेयरनेस जनरेट करनी है। आपको इसका एक एग्जांपल मैं क्रिकेट से देता हूं। आपको पता है कि धोनी इतना ग्रेट जो है चैंपियन प्लेयर बने, उनको कई लोगों ने पूछा कि आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, उनका कहना था सिचुएशनल अवेयरनेस। ये सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होता है, वही आपको डेवलप करना है। सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है, उसका मायने ये होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है उसको पता है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि अरे ऑस्कर किसने जीता, इस बार का विंबलडन टेनिस किसने जीता, वो पढ़ नहीं रहा है, वो उसको रट नहीं रहा है। ये कुछ नहीं है, ये तो बेवकूफी है मेरे हिसाब से। इस तरह से आप एग्जामिनेशन में नहीं जा सकते। आपको ऐसा होना पड़ेगा कि आपको खुद ही पता चले, ऑस्कर देख लेते हैं, अच्छा इस बार का ये हुआ, ओके, और इस बार का नोबेल प्राइज किसको मिला है, किस लिए मिला है, थोड़ा पढ़ लिए। अच्छा कोई एक इवेंट हुआ, अभी 2+2 टॉक हो रही है, अच्छा मालाबार जो एक्सरसाइज हो रही है, ये क्या होता है, की बैठक हो रही है, ये क्या होती है, अभी नाटो ने कहाँ पे चढ़ाई कर दी, नाटो में कौन सा मेंबर आ गया। ये सारी चीजें जो है दुनिया में लगातार हो रही है, एवरीडे हो रही है। आपको अवेयर होना है और इस तरह से इनग्रेन करना है कि वो आपको अलग से कोई मैगजीन खरीद के, कॉम्पिटिटिव मैगजीन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए क्या जरूरी है कि आप अच्छे जो है एडिटोरियल अभी भी आपको ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आपको कोई ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। कोई फ्री भी बहुत सारे पेपर है, फ्री पढ़ लो, कुछ मैगजीन के कुछ पेपर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत कम है। और न्यूज आर्टिकल, यहाँ पेपर में, न्यूज पेपर में यहाँ पे एडिटोरियल होती है लेफ्ट साइड, और यहाँ पे एडिटोरियल आर्टिकल होती है, यहाँ पे कुछ और लेटर उटर होते हैं एडिटर को। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए और क्रिटिकली पढ़िए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया, अभी मान लीजिए वैक्सीन प्रॉब्लम, और किसी ने कह दिया थर्ड थर्ड जो पैंडेमिक की जो आएगी वेव, उसके बारे में लिख दिया, और आप उसको पढ़ के जस्ट एज इट इज नहीं उसको करना है, क्रिटिकली उसको एनालाइज कीजिए, दोस्तों से डिस्कस कीजिए, डिबेट कीजिए इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, इवेंट पे, फिर ग्रुप बांट करके नए टूल को यूज कीजिए। देखिए मैं अभी फील कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा न्यूज ट्विटर पे सबसे पहले आती है। ट्विटर के मेंबर बन जाइए, ट्विटर 5 मिनट लगता है, वहां जाके इधर उधर की बातें नहीं करनी है, वहां जाके ट्रॉल नहीं करनी है, किसी को गलत बातें नहीं करनी है। आप ऑब्जर्व कीजिए, केवल न्यूज सुनिए, वहां पे सबसे पहले न्यूज आता है। आपको ऑस्कर मिले, चाहे कोई गेम हो, चाहे ईपीएल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ट्विटर से न्यूज पढ़िए, ऑनलाइन न्यूज पढ़िए, बहुत जल्द आता है। ऑनलाइन जनरल स्टडीज क्लासेस बहुत सारे हैं यूट्यूब पे एंड अदर्स, उसको पढ़िए उसमें जहां आपको अच्छा लगता है। एंड लॉजिकल, ये तो हो गई। यदि आप ये करेंगे तो आप ऐसे ही जीके के लिए अवेयर हो जाएंगे, बिना कुछ किए हुए 3 साल में आप जीके आपको एक इनग्रेन हो जाएगा। आप इसलिए नहीं करेंगे कि आपको कंपटीशन देना, इसलिए करेंगे कि आप अपना मुंह खोल सकें, आप एक अवेयर पर्सन बन सकें, और उससे आप जॉब रेडी हो जाएंगे। देन इंडिया में एक और है कि लॉजिकल रीजनिंग पूछते हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों।
पता नहीं क्यों पूछते हैं, क्या मीनिंग है, इन बेस पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना आसान है। आप जो RS अग्रवाल की बुक है या और भी बुक है बाजार में, आप खरीद लीजिए। मुझे लगता है वो 8th क्लास के बच्चे के लिए, मेरे अनुसार से तो आप लोग उसके लिए बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी बैठ के कुछ कर लीजिए। इसके बाद क्या पैटर्न होगा, क्या नंबर होगा, बहुत आसान है। केवल लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं होगा। अब उसको एकदम बिल्कुल फन की तरह कीजिए। ग्रुप में बैठ जाइए, बोलिए कि कौन सबसे पहले करता है, कौन सबसे ज्यादा सही करता है, कुछ चॉकलेट टॉफी का अवार्ड कर दीजिए, और इससे आपका जो है वो जॉब रेडी आप होंगे। एंड फाइनली जो मैं कह रहा हूँ, जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कि यदि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेनी है या आपको एकेडमिक्स में जाना है, तो आपको 8 CGPA एंड अबव है तो अच्छा है। वैसे उसके बाद भी लोग गए हैं, जा सकते हैं, लेकिन वहां पे जरूरत पड़ती है इन 2 जगह पे। बाकी जॉब के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप 5 CGPA में भी आपको अच्छी जॉब मिल सकता है, मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो ये है, इसके लिए कोशिश कीजिए। यदि होता है तो ठीक है, नहीं होता ठीक। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट ये है। सो दिस इज द वे यू कैन मेक योर सेल्फ जॉब रेडी। और टेक माई वर्ड, यदि आप ये करते हैं तो आपको जॉब के लिए नहीं सोचना होगा। आप हंसते खेलते हर कंपटीशन कंपीट करेंगे, आपको जॉब मिलेगी।